بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنی تمام بہنوں اور بھائیوں کو السلام علیکم کہتا ہوں۔ آج میں آپ کو ایک ایسی دعا بتانے جا رہا ہوں جو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی اور بتائی کہ جب تم بہت زیادہ غم زدہ ہو جاؤ، جب تم بہت زیادہ پریشان ہو جاؤ، جب تمہیں بہت سخت حاجت ایسی پیش آ جائے کہ جب تمہاری نگاہیں لوگوں سے اٹھ جائیں، مخلوق سے اٹھ جائیں، ہر انسان پر اس کی زندگی میں ایسے لمحات آتے ہیں کہ جب انسان دوسروں سے توقعات رکھنا چھوڑ دیتا ہے، ہمت ہار جاتا ہے اور ایسے میں وہ کچھ ایسے اقدام اٹھاتا ہے، کچھ ایسے الفاظ نکال دیتا ہے کہ اس مصیبت کے لیے میں ہی پیدا ہوا تھا، یا پھر بہت زیادہ ہماری بہنیں مصیبت آنے پر اپنے آپ کو برا برا کہتی ہیں، اپنے مرنے کی دعا کرتی ہیں۔ تو جب بھی یاد رکھیں، آپ پر کوئی بھی مصیبت آ جائے یا کوئی بھی پریشانی آ جائے تو آپ 3 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لیں تو انشاءاللہ آپ کی ہر پریشانی، ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ کئی مرتبہ انسان غمزدہ ہوتا ہے اور سوچتا ہے میں تو اکیلا ہوں، میرا ساتھ دینے والا کوئی نہیں، ماں باپ فوت ہو گئے ہیں، کہاں جاؤں، کس کو اپنے دل کا غم سناؤں، میرا دل کا غم کیسے دور ہوگا، اور دل پر یہ جو پریشانی آئی ہے اس پریشانی کو اب میں ختم کیسے کروں، اور جس وجہ سے یہ پریشانی آئی ہے اب میں اس کو دور کیسے کروں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، کنز الاعمال کی روایت ہے کہ قرآن کریم کی ایک آیت کو 3 مرتبہ یقین کے ساتھ پڑھ لیں، اللہ پاک ہر قسم کے غم زدہ دل کو تسلی فرما دیتے ہیں۔ اب وہ الفاظ کیا ہیں؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ دوبارہ سے بتا دیتا ہوں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اکثر بچیوں کو یاد بھی ہوتی ہے، اس آیت کو 3 مرتبہ پڑھنے پر اللہ تعالیٰ انسان کے سیڈنس ختم کر دیتے ہیں، غم ختم کر دیتے ہیں، دل کو خوش کر دیتے ہیں، اور اس کی وہ جائز حاجت پوری کر دیتے ہیں جس وجہ سے اس کا دل غمزدہ ہو جاتا ہے۔ آج ہم جب کوئی پریشانی آ جاتی ہے، اکثر بہنیں یہ کہتی ہیں کہ ہم پر جب کوئی پریشانی آتی ہے تو ہمارا دھیان اللہ کی جانب جاتا ہی نہیں ہے۔ ہم تسبیح لے کر کے یاد رکھیں، جب آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہوں تو ذکر کرنے کا اکثر لوگ ذکر تسبیح سے کرتے جاتے ہیں، لیکن ان کا سارا دھیان کسی اور جانب ہوتا ہے، سامنے ٹیلی ویژن لگی ہوئی ہوتی ہے، نیٹ لگا ہوا ہوتا ہے، اور ہماری ساری توجہ وہاں پر ہوتی ہے اور زبان سے ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسا بالکل بھی نہیں، بلکہ بزرگ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ پر کوئی ایسی پریشانی یا مصیبت آ جائے
आप तन्हाई में जा करके ये अल्फाज पढ़ें भी और अपनी आंखों से आंसू भी गिराएं, या अल्लाह मुझसे तौबा, या अल्लाह मेरी जिस गुनाह की वजह से मैं आज इस गम में मुब्तला हूँ, या अल्लाह तू उस गम को भी दूर कर दे, उस परेशानी को भी दूर कर दे। और बाज लोग जो अपने आप को बहुत गुनाहगार समझते हैं और उनका दिल अल्लाह की जानब भी नहीं जाता, मैं उनके लिए ये बताना चाहता हूँ, उनके लिए आज मैं उनसे ये बताना चाहता हूँ। आए रोज अखबारात में ये इश्तिहार लगा होता है, हमने अपने बेटे को बोझा नाफरमानी, गुस्ताही, बदचलन, आवारा गर्दगी और गैर इखलाकी तौर पर हम इसको जायदाद से आग कर देते हैं, हम इसके किसी भी नफा नुकसान के जिम्मेदार नहीं होंगे, हमसे इसका कोई ताल्लुक नहीं होगा। कभी आपने गौर किया है, हम अगर किसी बंदे का कोई राज हमें पता चल जाता है, हम उसे वहां जलील करने की कोशिश करते हैं जहां उसकी इज्जत जितनी ज्यादा की जाती है, हम उसे लोगों की नजरों में इतना गिरा देते हैं, अगर उसका कोई राज पता चल जाता है उसे दुनिया में जलील कर देते हैं ताकि वो सर उठाने के काबिल न रहे। लेकिन आज हर इंसान अपने गिरबान में झांक करके देखे, हमने बचपन से लेके आज तक जो भी किया है, अल्लाह पाक हर किस्म की चीजों को जानते हैं, हर दुख जानते हैं, हर चीज जानते हैं, हमारा हर राज जानते हैं। अल्लाह पाक तो हर चीज से गाफिल नहीं है, वो इंसान का एक एक राज जानते हैं। कभी अल्लाह पाक ने हमें किसी के सामने जलील करने की कोशिश की है, या कभी अल्लाह पाक ने हमारा राज किसी के सामने बताया है? वो तो इंसान से इतनी ज्यादा मोहब्बत करते हैं कि अगर बेटा ऐसा हो जाए तो वालिदैन उसको आग कर देते हैं। मेरा रब कितना अच्छा है, मैं बदचलन हूँ, आवारा हूँ, गुस्ताख हूँ, नाफरमान हूँ, लेकिन अल्लाह कभी भी अपनी नेमतों से आग नहीं करते, मुझसे कतई ताल्लुकी का इश्तिहार नहीं निकालते, मेरी रोटी रोजी से गाफिल नहीं करते, लोगों को बता बता के मुझे जलील और रुस्वा नहीं करते, खामोशी से दरवाजा खुला छोड़कर मेरे लौटने का दिन रात इंतजार करते हैं। मेरे रब कितने अच्छे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बूढ़ा बद्दू आया, आकर के अर्ज करने लगा, अल्लाह के रसूल, मैंने सारी जिंदगी गुनाहों में गुजार दी है, अपनी सारी जिंदगी मैंने अल्लाह पाक की बगावत में गुजार दी है, कोई भी गुनाह ऐसा नहीं जो गुनाह मैंने छोड़ा ना हो, रब की नाफरमानी में मैंने हद कर दी है, कोई भी गुनाह ऐसा नहीं जो मैंने किया ना हो, मेरी जिंदगी में एक भी नेकी नहीं है, मेरी जिंदगी में सारी की सारी बुराइयां हैं। अब बुढ़ापा इस हद तक आ चुका है कि मुझे कब्र में मेरे पांव चले गए हैं, क्या अब भी मेरे अल्लाह मुझे माफ कर देंगे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बंदे को देख के मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि अगर तू अपनी जुबान से एक मर्तबा सच्चे दिल के साथ ये कह दे, या अल्लाह मैं सब गुनाहों से माफी मांगता हूँ, तुम मुझे माफ कर दे, तो हमारे अल्लाह इतने अच्छे हैं कि वो तेरे सारे गुनाहों को माफ फरमा देंगे। वो तो इतनी मोहब्बत करने वाले हैं।
इस वजह से जब हमारे गुनाह ज़्यादा हो जाते हैं और हम पर कोई मुसीबत आ जाती है, हमारी नज़रें लोगों से उठ जाती हैं, हमें सख्त से सख्त हाजत पेश होती है, तो ऐसे में सिर्फ एक अल्लाह पाक से रुजू कर लिया करें। अगर आपके गुनाह इस हद तक भी हैं कि आसमान और ज़मीन भर जाए, अल्लाह पाक खुद फरमाते हैं, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, अल्लाह फरमाते हैं, ए इब्ने आदम, अगर तेरे गुनाह आसमानों के किनारों तक पहुंच जाएं और तूने मुझसे मग़फ़िरत की दरख्वास्त की तो तेरी मग़फ़िरत कर दूंगा और परवाह भी नहीं करूंगा। ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है। अल्लाह पाक इंसान की हर किस्म की परेशानी को, हर किस्म की हाजत को पूरी फरमा देते हैं। कभी इंसान अपने रब की तरफ आके तो देखे। इस वजह से आज का जो वजीफा है, जब भी आप पर कोई परेशानी आ जाए, कोई मुसीबत आ जाए, तो आप तन्हाई में जा करके गिरगिरा करके अल्लाह पाक से 3 मरतबा इस दुआ को पढ़ लें। अल्लाह पाक हर किस्म की परेशानी को दूर कर देंगे। आखिर में आपसे ये रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि इस वजीफा को आप दूसरों तक ज़रूर शेयर करें और इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।